inspiring personality, a passionate entrepreneur, a visionary, and someone who turned his ideas into impactful reality. Let me introduce you all to Mr. Shubham Chaurasia, founder and CEO of MNB Shopping Private Limited, the proud mind behind the website www.mymomdad.com. Born and brought up in Varanasi, Mr. Chaurasia pursued his higher education from Lucknow. He has a dynamic background with professional experiences across reputed institutions like the UP Exercise Department, UNICEF, and Jeevansathi.com. With over 3.5 years in the startup world, he is not just a businessman, but a dreamer who executes. Today, he is here with us to share his journey, the highs, the lows, the hustle, and the heart it takes to build something of your own. Now, I request Principal Sir and Admin Ma'am to kindly come forward and felicitate the Chief Guest. I would like to introduce our basically a startup, and which is based in Varanasi, and we are incubated in AIC BHU, right? And so, firstly, I would like to introduce the website. The name is mymomdad.com. We are building a cultural e-commerce marketplace like Flipkart and Amazon. And I'm sure all the students might be doing online shopping, right? Okay. So, firstly, आपको पता है कि बनारस की बनारसी साड़ी फेमस है, लखनऊ की चिकनकारी फेमस होती है, भदोही की कारपेट फेमस है, तो इसको किस नाम से इसको प्रेजेंट किया जाता है? आप किसी को आइडिया इसको क्या बोला जाता है? सबको पता है कि हर शहर में कोई ना कोई स्पेशल चीज़ होती है, फेमस होती है, उसका ओरिजिन होता है, एंड आपको पता है उसको किस नाम से बुलाया जाता है? Is there anyone who is aware about it? Okay. इसको बेसिकली GI टैग कहते हैं, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। जैसे हम लोग कल्चरल प्रोडक्ट पे डील करते हैं, आई एम श्योर कि इंडिया के GI टैग बहुत मेजर रोल प्ले करता है। जितने भी जितना भी इंडिया के GI टैग प्रोडक्ट होते हैं उसको ऑफिशियली अपने वेबसाइट के थ्रू सेल आउट करते हैं। एंड विद द कोलैबोरेशन ऑफ BHU फाइन आर्ट स्टूडेंट एंड ऑल दी अदर एंटरप्रेन्योर्स, वी आर क्रिएटेड अ मार्केटप्लेस जहाँ पे आपको कल्चरल प्रोडक्ट्स मिल जाएगा, पैन इंडिया GI टैग प्रोडक्ट, कल्चरल टी-शर्ट, कल्चरल फैशन एक्सेसरीज, कस्टमाइजेशन, होम डेकोर, and attached like basically, and I'm sure Banaras is spiritual capital of India है, and यहाँ पे जितने भी पूजा पाठ की चीजें हैं, तो already we get easily to source and sell on your website. And recently we have introduced the notebook, which I would like to present you well, right? I would like to show the website notebook, right? कितने लोग classmate notebook use करते हैं basically, just raise your hand. Okay. And what do you guys find in this notebook like if you use करते हो? Is there anyone who would like to say? Smoother page, right? Anyone? Okay. So the specialty of this notebook is to be dedicated to parents, right? MNB education के नाम से notebook ही है. इसकी specialty अगर आप इसको open करते हैं तो आपको अच्छी habit, daily schedule, वैदिक clock time, types of doctor, types of hair, how to plan a day, इस तरह के basic content होता है, and back side में cultural facts present करते हैं, जैसे शाम को फुल क्यों नहीं सोना चाहिए, इसके पीछे का scientific reasons क्या है, तो इस पार्ट ऑफ माय प्रोजेक्ट तो मैंने आपको इंट्रोड्यूस कर दिया, तो जस्ट वांट टू नो कि यहाँ कितने लोग हैं जो अपने स्टार्टअप करने का प्लान कर रहे हैं या कोई जॉब करने का प्लान कर रहे हैं? आप लोग स्टार्ट करो कि कौन स्टार्टअप करना चाहता है, जस्ट जीरो है और कोई नहीं स्टार्टअप करना चाहता। ओके, जॉब के लिए क्या प्लान है आप लोग के? कौन यहाँ पे जॉब करना चाहता है? ओके, और जॉब क्यों करना है आप लोग, बस ये जानना। बताओ डोंट फील शाय, बिकॉज अभी शाय फील करोगे तो फिर फ्यूचर में फिर आपको इसे फेस करना होगा। Okay, this is the entire website. So I just want everyone to be involved in this communication. कि स्टार्टअप कौन करना चाहता है, कि अब नहीं पता कि फ्यूचर में कौन स्टार्टअप करेंगे, पर मन की बात है। किसका मन करता है कि यार फ्यूचर में कुछ आज नहीं तो कल स्टार्टअप करना है, भले कॉलेज खत्म होने के बाद या कुछ सालों बाद। कितने लोग हैं? जस्ट रेज योर हैंड। बस एक ही लोग हैं।
जी तो लैंड और कोई नहीं है। ओके, कितने लोग जॉब के लिए प्लान कर रहे हैं कि आपकी जब स्टडीज कंप्लीट हो जाए तो कौन बच्चे जॉब करना चाहते हैं? Then I would like to review the workshop we have just conducted in BHU AIC. The name is Entrepreneurship Skill Development Workshop. इस वर्कशॉप में क्या मैं आपको बताना चाहूँगा जैसे कि basically I was also a student of Sangeet and already मैंने अपनी फर्दर जर्नी में बहुत सारी चीज़ों को डीपली अंडरस्टैंड किया, प्रॉपर को हम लोग 45 वर्किंग डेज में कंप्लीट करा एंड आई एम श्योर यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट है जो कि स्टार्टअप करना चाह रहे थे, राइट? तो एंड आई एम श्योर आप लोग मैनेजमेंट बैकग्राउंड पे, राइट? आपको पता है कि वेबसाइट कैसे बनती है? कोई है ऐसा जिसको जो जानने में एक्साइटेड हो कि वेबसाइट कैसे बनती है, फ्यूचर प्लान कर रहे हैं कि या मुझे अपनी स्टार्टअप तो करनी है पर मेरे को अपनी वेबसाइट फ्यूचर तो बनवानी पड़ेगी, जो कि बेसिक है बेसिक। तो कौन कौन जैसे आप मैनेजमेंट बैकग्राउंड के हो तो आपको आइडिया है कि वेबसाइट कैसे बनती है, फ्रंट एंड बैक एंड क्या होते हैं? नहीं आइडिया, जस्ट वांट टू कम ऑन स्टेज, तो ये ज़्यादा बेटर होगा। जस्ट कम। और कोई था जो जॉब करने का प्लान कर रहा था? कौन सा जॉब करने के लिए प्लान कर रहा था? जस्ट रेज योर हैंड। डोंट बी शाय, कोई ऐसा नहीं है, ये स्कूल में ही है अपने। कॉर्पोरेट में जाओगे तो और अलग चीज हो जाएगी। चलो आप स्टार्टअप करने का प्लान कर रहे थे तो आपको आइडिया तो होगा नहीं कि टेक्निकलिटीज के बारे में। तो क्या लगता है अगर आप मार्केट में जाते हो वेबसाइट बनवाने के लिए, स्टेज के ऊपर कि आपने स्टार्टअप कर लिया, अब आपको बेसिक वेबसाइट की जरूरत है, तो आप क्या करोगे? आप अगला स्टेप क्या होगा? एक्सपेक्टिंग कि वो एक्सपीरियंस पर्सन आपसे कितना चार्ज करेगा? 50,000. If I just say कि it's very easy and without investing a penny you can just create a website, then how you suppose you are not having any experience कि you are to be a fresher, आपने कभी इस चीज को फेस नहीं किया है, अगर आपको चांस मिले कि यार चलो आपको बंदा नहीं मिल रहा है, आप बहुत हाई चार्जेस कर रहे हैं, अगला स्टेप क्या होगा? डोंट हैव अ टाइम, देन अगर आप ये भी तो कर सकते हो ना कि किसी आईटी सर्विसेज को आप प्रेजेंट कर सकते हो, मैं क्लाइंट हूँ आपका, आप मेरे को आईटी सर्विसेज प्रोवाइड कर दो, तो क्या लगता है उसका रिस्पॉन्स और किस तरीके से आपको प्राइस कोटेशन करेगा? तो मैं टेक्निकल बैकग्राउंड में नहीं हूँ, अगर मैं BBA एंड MBA देन मेरी कुछ अदर एक्सपीरियंस थी कॉर्पोरेट्स में, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वेबसाइट कैसे बनती है, क्या होता है। ऑलरेडी हमारा बिजनेस कोर हमारा वेबसाइट ही है बेसिकली। तो मैंने बहुत प्रॉब्लम फेस किया, मतलब कि किसी भी आईटी एजेंसीज के पास मैं जाता था, वो मेरे को छोटी जो काम फ्री में होता था वो मेरे को 20-30,000 रुपीज़ तक कोटेशन दे देते, और मुझे लगता था कि ठीक है कहीं ना कहीं मैं मैनेज करूँगा, मेरी सेविंग्स थी, मतलब मैं जॉब करके अपनी सेविंग्स करके फिर उस चीज़ को मैंने इन्वेस्ट किया था। जब क्या वो उस बंदे ने जब मेरे को वेबसाइट बना के दी, मतलब कि बहुत अच्छी वेबसाइट नहीं थी, क्योंकि वेबसाइट में टेक्नोलॉजीज का बहुत मेजर रोल भी होता है, किस लैंग्वेज पे। कुछ वेबसाइट आप लोग देखते हो ना कि मतलब बहुत धीरे धीरे लोडिंग लेती है, और कुछ वेबसाइट होती है जो फ्लिपकार्ट है मतलब इंस्टेंट ओपन होती है, राइट? तो ये बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले है कि अगर आपको नहीं पता है तो सामने वाला जो आईटी सर्विसेज का बंदा है वो आपको अलग ही कोटेशन देगा, उसको पता है कि यार आपको आइडिया है नहीं इस चीज़ के बारे में, आपको टेक्निकलिटीज के बारे में आइडिया, तो आपको कहता है भैया 50,000 रुपये, अब आपकी मजबूरी आपको तो बनवाना है, आपके अंदर एक एक्सपीरियंस होगा कि यार इस बंदे ने मुझे सही कोटेशन दिया कि अगर भी ऑनेस्ट थे कि यार मैं स्टार्टअप करना चाह रहा हूँ, मेरे को ऐसा है। तो अगर आप क्लाइंट हो, अगर आप आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, Absolutely, I will charge for my efforts and knowledge for that. थोड़ा बढ़ा के लेंगे। अगर मैंने बोल दिया कि मैं टेक्निकल चीज में आपसे बात कर रहा हूँ कि देखो मेरे को इस लैंग्वेज पे चाहिए और इतने
टाइम का प्रोजेक्ट होना चाहिए। और मुझे पता है कि यार ये मतलब इतना कॉस्टिंग नहीं है कि मैं इतना आपसे बात की कि मुझे तो रिएक्ट में चाहिए और मेरे को फ्रंट एंड बैक एंड फिर आपके टेक्निकलिटीज में बात कर दिया, तो क्या आप मुझे एक्स्ट्रा चार्ज फिर भी करोगे? एग्जैक्टली आप तो नहीं करोगे। तो ऑलरेडी अगर ये मैंने टेक्निकल बैकग्राउंड की सपोज करो तो आपको पता है सेल्स मार्केटिंग कैसे होती है, टीम बिल्डिंग कैसे? एग्जैक्टली मुझे नहीं पता होगा क्योंकि ये लैक है कि हम लोग मैनेजमेंट बैकग्राउंड के हैं, पर अगर आप स्टार्टअप जर्नी में जाते हो तो आपको सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट करना होता है फ्रंट पे आके बेसिकली। अगर आप मैनेजमेंट के तो आपको टेक्निकलिटीज के बारे में नहीं पता होगा कि वेबसाइट कैसे बनती है, हेडर फुटर क्या होता है, फ्रंट एंड बैक एंड क्या होते हैं, कौन कौन से लैंग्वेजेस होते हैं। एंड आपको जब इतना आप जान जाओगे तो आपके लिए डील करना, लोगों को हायर करना बहुत ईजी हो जाएगा। और ये उनके लिए भी बेनिफिशियल है जो कि टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं। जैसे टेक्निकल बैकग्राउंड के जो IT PhD के स्टूडेंट होते हैं, ऑलरेडी हम लोगों ने 4 वर्कशॉप प्रीवियसली किए हुए हैं जिसमें कि MBA के फॉरेन ट्रेड के स्टूडेंट हैं और इंटरनेशनल बिजनेस के स्टूडेंट हैं और IT PhD के और कुछ संजीव के स्टूडेंट थे आप ही के कॉलेजेस के, और साथ साथ KIT और मिक्सअप हम लोगों ने बैच चलाया था। तो ये कैसे हेल्प आउट किया? तो ये सारे चीज़ों को हम लोगों ने 45 वर्किंग डेज में बेसिकली कंप्लीट कराया हुआ है, जो कि बहुत पॉजिटिव था। एंड रिसेंटली आपके कॉलेज के सीनियर्स थे, आई गॉट टू नो कि उनके वर्कशॉप अटेंड करने के बाद उनकी जॉब की ट्रेनिंग लगी थी। क्योंकि सेल्स में क्या होता है, सेल्स तो सबको पता है कि सेल्स मतलब सेलिंग एंड परचेजिंग बेसिकली, और पर उसको ऑन ग्राउंड कैसे करते हैं। सेल्स होती है इसकी पिच तैयार होती है, ठीक है। जैसे अगर आप किसी प्रोफेशनली फील्ड में जाते हो तो वहाँ पे आपको पिचिंग होता है कि आप नहीं देखते किसी भी आप शोरूम में जाते हो, एक बंदा आता है आपको प्रेजेंट करने के लिए, मैम आइए बैठिए, क्या चाहिए आपको, आपका बजट कितना है, फिर वो उस चीज़ को प्रोडक्ट को प्रेजेंट करता है इस तरीके से। ना आपको ये सबके साथ हुआ होगा, जब भी आप एक बजट लेके किसी शॉपिंग के पर्पज से आप गए हो तो शॉपकीपर हमेशा आपको ऊपर से ही सामान बेचाया है। 1000 रुपये का आप पूछा कि आपका बजट क्या है, तो आप बताए सर मेरा 1000 रुपये बजट है, तो हमेशा आपको 1000 रुपये के ऊपर ही की चीज़ें प्रेजेंट करता है, उसके अंदर की चीज़ें प्रेजेंट नहीं करता क्योंकि वो अप सेलिंग का पार्ट है। प्रैक्टिकली कि ये ऑलरेडी जब आप देखते हो कैंटीन में जाते हो बर्गर खाने के लिए, चलो मैं आलू टिक्की खाऊंगा, ठीक है, पर आप देखते हो वो इस तरीके से उस चीज़ को मॉडिफाई करके प्रेजेंट करता है, तो आप आलू टिक्की से बढ़ के आज फ्रेंच फ्राइज ले लेते हो, मील ले लेते हो, तो ये चीज़ें बेसिकली। और इसमें क्या है कि जो मैं आपको कुछ टॉपिक्स को बताना चाहूँगा कि जो कि हम लोग वर्कशॉप में कवर अप कराते हैं। सेल्स, मार्केटिंग, HR में हमने कैसे इंटरव्यू देना है, आई एम श्योर कि कम्युनिकेशन क्या बहुत होती है क्योंकि बनारस में कोई ऐसा MBA नहीं जहाँ पर हम इंग्लिश में बात करें। और मैंने भी चीज़ को बहुत डीपली फेस किया। जब मैं पहले वॉकिंग के लिए गया था तो मुझे एक्स्ट्रा मार्क्स मैंने अप्लाई किया था, तो उन्होंने बोला कि आई वुड लाइक ब्लेजर इधर पहन के एकदम टाइट अच्छे तरीके से गले टेबल पर मैं गया इंटरव्यू देने। वहाँ पर उन्होंने पूछा कि बेसिक चीज़ें, मैं वहाँ पर बोल नहीं पा रहा था, मैं बहुत नर्वस हो गया। और वहाँ पे दिल्ली में जाके उसने मेरे को बोला कि आप क्योंकि लखनऊ में आप जब भी नहीं अप्लाई करते हैं, वहाँ तो यूपी का बेसिकली हिंदी में बात करोगे तो आपको सेलेक्ट कर लेंगे। पर ताकि IIMS के लिए क्या मेरे पेरेंट्स ने इतने पैसे खर्चे की, अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड की, सारी चीज़ें की, और एक ऐसा समय है कि अब मैं इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पा रहा। देन मैंने उस चीज़ का सोल्यूशन निकाला कि अब मैंने अपने फ्रेंड से बात की, क्या आई रियली वांट टू इम्प्रूव माय कम्युनिकेशन स्किल, देन तुम हिंदी में बोलो और मैं तुमसे इंग्लिश में रिप्लाई करूँगा। इससे क्या हुआ कि आई स्टार्ट फीलिंग कॉन्फिडेंट किया। मैं अपने फ्रेंड से अपनी चीज़ों के बारे में, मैंने गलती बोला पर मैं बोलता था क्योंकि डेडिकेशन से दिया रहता है और इंटायर चीज़ें। तो क्या लगता है कि आपके हिसाब से HR किसको सेलेक्ट करेगा उस जॉब के लिए? लाउडर, आई कैन सी कि सब हैं पर बहुत शांत है, शायद हटा दो, कोई मतलब नहीं है चीज़ों को। क्योंकि मैं बहुत डीप से, मैं भी बनारस का था, मैंने भी यहीं से स्टडीज़ की, और साथ साथ क्या है कि मैंने फिर बाहर में गया और चीज़ें मेरी लाइफ में मुझे बहुत कुछ सिखाया कि कैसे क्या रियल लाइफ एक्सपीरियंस क्या होता है। बहुत सारे मैंने डाउनफॉल को भी फेस किया, तो उससे जाके मैंने हर चीज़ को रिकवर किया। तो आई हैव सजेशन कि आप लोग इस अंदर के शाइनेस को एकदम हटा दो, क्योंकि शाइनेस ही आपको उस चीज़ से रोक रहा है कहीं ना कहीं कुछ अच्छा करने से, कुछ प्रोडक्टिव करने से, ठीक है। तो ये जैसा तो मैंने एग्जाम्पल बताया कि ये आपको दे रहे हैं गवर्नमेंट वुमेन्स के लिए बहुत फैसिलिटी दिया है। वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करने के लिए हम लोग बेसिकली मदर एंटरप्रेन्योर को प्रमोट कर रहे हैं और वुमेन्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। यहाँ जो आपको क्योंकि सब यहाँ पे यूपी के रहने वाले हैं, ऐसा कोई है जो यूपी के बाहर में
तो अगर यहाँ पे इंटरेस्ट दिखा के बच्चों को यहाँ पे प्लेसिंग प्रोवाइड करें और जिस हिसाब से बनारस डेवलप हो रहा है से कि लाइफ में थोड़ा सा रिस्क है, क्योंकि आप शांत बैठोगे, आप नई चीज़ें किसी से डिस्कस करोगे ना, तो अपने आप को चीज़ से बांध लो, अपने आप को बांधने का समय नहीं, अपने आप को कि आपके पेरेंट्स ने बहुत सारे एक्सपेंसेस करके आपको ये अच्छी लाइफ स्टाइल प्रोवाइड की है, तो आप कहीं ना कहीं चीज़ को एक्सप्लोर करो। क्या पता कल के डेट में आप बहुत लीडिंग पर्सनैलिटी हो इंडिया में, क्या पता आप फॉरेन में सेटल करो, अपने बिजनेस को या कुछ भी हो, तो कहीं ना कहीं वो आपको तो प्राउड होगा, आपके पेरेंट्स को प्राउड होगा, आपके शहर को आपको प्राउड होगा, ठीक है। तो आई थिंक कि ऑल द बेस्ट सबको एंड एक्सप्लोर करो चीज़ों को, क्योंकि ठीक है। तो आई जस्ट वांट कि एवरीवन टू पार्टिसिपेट, इसमें पार्टिसिपेट करिए। बहुत अभी तक ऐसा मेरे टाइम पे तो नहीं था, अगर ये वर्कशॉप मेरे टाइम पे अगर मैं अटेंड किया होता तो मेरे को इतना प्रॉब्लम नहीं फेस करना होता और मेरे को पहले ही वो अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। थ्योरेटिकली ये चीज़ अलग होती है, पर प्रैक्टिकली अगर जब चीज़ को आप करोगे ना, ये उस तरीके का कि अगर आपको मैं एक नॉवल दे दूँ 2 स्टेट्स का और एक मूवी दिखा दूँ 2 स्टेट्स का, ठीक है, तो आप श्योर आप किससे ज़्यादा समझना पसंद करोगे और जिससे डीप में समझना पसंद करोगे। Okay, so how did you like the session? I know it was very much insightful, and I'm very much thankful to sir for being here, for delivering such a nice presentation on his workshop. You know, if you will be into that, you will be getting benefited and you will learn lots of skills which are required to be a successful person in your life, whether you go for a service sector or for any other kind of entrepreneurial, enterprise. So please enroll yourself in such kind of workshop. If it comes to you as an add-on, I request you all, and I am very much thankful again, once again. And one more thing I would like to inform you, as most of you don't know about it. So our college has established IIC, Institution Innovation Council, and also we have an MOU with PHU. This MOU has taken a form of satellite incubation center, which is established in our own college, where you can, just give me your ideas, business ideas, new kind of business ideas, which are always appreciated, and if we like it, if our jury likes it, you will be getting fundings for that, your company will get registered, and also we can have the patent facilities and IPR related, provisions for that. So looking forward to hear from you the great ideas which already you are into in. I have seen many potential students who have gone through such kind of exercises before also, and it gives me very much happiness, a kind of satisfaction if I could see such kind of students around. So I request you all to please come up with new kind of ideas. I am sure you will be. Please deposit such ideas and take part in such kind of events. And sir is a valuable resource person. Whenever we go to AIC, we always approach. And one more thing I would like to tell all of you, that 2 of our previous batch students, they have already enrolled themselves to this workshop, and now they are highly paid by one of the companies. Because of this workshop, they got very good job, and that is proved. I have the certificates for that. So if you enroll yourself in such workshop, it will be very beneficial for all of you. It's okay. So thank you for being here. Thank you for being patient, and thank you sir and everyone. Thank you faculty members for attending this.